sake of the session, we will start with a session of introducing, and here introduction would be more from the technical perspective. This introduction should be from the point of view what we can contribute for crime-free Bharat. After the introduction, I will really brief what is the whole concept, and then we will, and how we would like to really take it to the logical end. Because in the last meeting we have decided that within 3 months we have to launch this pilot project, and at least focused on 3-4 places, so that we can bargain with the government. And so I will explain whole concept. It is basically society, it is a trust, and it is a company also. This mission is really intending to change the face and fate of this country. So whatever we are talking here, it is not a informal talk. All of us are very serious. It is a very unique opportunity to transform our nation, where the job and services will be in abundance. Health and wealth would also be in abundance. Probably we will remove the negative traces from our life, because so much of distortion has been brought in, that abundance of the nature has been converted into the scarcity, and then the scarcity has been converted into the business. And now this distortion has to be corrected from all walk of life. So before formally starting on it, I request to reintroduce yourself. Let it be little more technological introduction, and with the intention how best you personally and along with your network of contact, how really you would like to contribute for crime-free Bharat. Thank you. All right. Yeah. So let us start one by one. So who want? Maithili, why don't you call the people one by one, and then that way we will be able to go in order. Vineet sir, आपने start कर दिया, तो why don't you start? Sure. So I'm Vineet Rajput. I'm actually, I have worked in field of IT for more years than I care to even remember. More 30, 35 years, 35, 40 years almost. So what I can do, of course, is what I make suggestions as well as guiding the development of any resources that need guidance from the IT side, as well as help formulate the policies on like what kind of information security, how information services can actually help in this mission. Right. तो मेरा नाम संतोष गुप्ता. तो मेरा आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बेसिकली, एंड देन वहाँ पर न्यूक्लियर पावर में था इंडिया में, और उसके बाद यहाँ आने के बाद आई स्टार्टेड इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज मोस्टली. तो आई एम ऑन द बैक एंड साइड, ऑन द डेटाबेस साइड. So I can help designing databases, getting the data, organizing the data, and rendering the data. So that's like this day, today data is everything, almost everywhere. But my expertise is not in the application space. I can guide, but knowingly कि मैथिली सर आप एक बड़ी टीम बना रहे हैं वहाँ पे जो doers की, I can be one of the doer, but again, I think young people, if they contribute and then we can guide them, they will have more zeal, hands-on, and better throughput, and we can provide the guidance. I can provide the guidance on the designing, architecting the solution, and getting the right kind of data, right kind of information out. Very nice. So looks like my turn. सबको हिंदी आती है ना? हिंदी.
सो मेरा नाम बिल्कुल अच्छे से आती है। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर चिंता मत लक्ष्मण करिए। प्रजापत है। मैं सब आपको प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ आपको। और मैं राजस्थान का हूँ, जयपुर से MBBS MD किया, फिर यहाँ के MD कार्डियोलॉजी में फेलोशिप किया, देन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में फेलोशिप की, फिर ट्रांसप्लांट कार्डियोलॉजी में फेलोशिप की। तो मैं कार्यरत हूँ एज एन इंटरवेंशनल एंड ट्रांसप्लांट कार्डियोलॉजिस्ट हियर। हार्ट फेलियर मेरी स्पेशलिटी भी है। सो आपका इनविटेशन मेरे को मिला, मेरे दोस्तों ने जोड़ा। इस समय मेरा मुख्य जो इंटरेस्ट है वो है, कोई भी देश के लिए काम हो रहा है तो उसमें मुख्य तौर पे जो हिंदुत्ववादी काम है उनमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा, आई डोंट लाइक द वर्ड सेक्युलर, तो ये मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अगर कोई समबडी डूइंग लाइक सेकुलर और हिंदुओं को दबाने की कोशिश करे तो मैं उस काम में नहीं आता। लेकिन बाकी और कामों में, जैसे योग का प्रचार प्रसार है, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार है, गीता जी का प्रचार प्रसार है, हेल्थ टॉक का जो प्रचार प्रसार है, तो मैं हेल्थ टॉक्स देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। तो मैं जैसा हूँ आपके सामने हूँ, और ये मेरे इंटरेस्ट हैं। और आप मेरे को जहाँ भी यूज करना चाहें, तो वहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ। ये मतलब आप लोगों तो डिफरेंट फील्ड के हैं, मैं थोड़ा सा बस मेरे इंटरेस्ट के कारण अब मैं आ गया हूँ। मातृभूमि की सेवा, मेरी तरफ से कुछ भी हो जाए तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू। सो दैट्स व्हाट आई एम। फिर आप पूछेंगे, जैसे प्रश्न पूछेंगे उस हिसाब से जवाब हम देंगे फिर। तो दैट्स मी, थैंक यू। देखिए, आप लोगों की जो भूमिका है वो GPS की है। दैट इज समथिंग लाइक गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। एंड इन आवर इंडियन कल्चर वी से गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। सो गॉड इज नॉट इम्पोर्टेंट। एंड देखिए, बेसिकली इस यदि पंक्ति को यदि हम चरितार्थ होते देखें तो हम 1954 तक माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ पाए, राइट। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़े तो शेरपा के सहारे चढ़े। और आज जो है एक एक सीजन में 2-2, 3-3, 5-5 टीम जो है ना उसी एवरेस्ट पे पहुंच रही हैं। दैट इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ द गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, एंड दोज गुरुज आर द शेरपास. So those who are climbing, they are not doing a big job. The Sherpas who are guiding them, they are responsible for ensuring the safe, secure journey and taking them to a place where they can really boast of and they can feel proud of themselves, and their country may feel proud of them, their achievement. But that achievement is largely on account of the Sherpas, those who know every inch of land. And if we really see, those Sherpas might have done the Mount Everest 25 times, 30 times, or maybe somebody might have done even 100 times. That need to be really looked at. So in the whole system, हमारे पूरे उसमें सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो रास्ते, वो विजन। इसके बाद तो उसके जो उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना, लोगों को जोड़ना, ये बहुत आसान काम है जी। और एक बार लोगों को ये लग गया कि ये जो है डुएबल है, तो आपके पीछे जो है ना कब बड़ा सैलाब बन जाएगा ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हल्का सा ब्रीफ करता हूँ, फिर देन आई विल इनवाइट व्हाट वी आर हैविंग, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। जैसे हम लक्ष्मण जी को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि ही इज ए ग्रेट कार्डियोलॉजिस्ट, एंड वी विल बी मेकिंग योर यूज, एंड आपके थ्रू हम चाहेंगे कि मेडिकल की बड़ी टीम बने, क्योंकि काम हम करेंगे, रिसर्च आप करेंगे, मेडिकल रिसर्च। हमारा इसमें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में हम साधारण चीज पैदा ही नहीं, अभी जो टेक्नोलॉजी ने जो प्रोग्रेस की है और उसके कारण जो डिस्टॉर्शन लाया है, उस डिस्टॉर्शन को रिमूव करना क्राइम फ्री भारत का एक बड़ा मकसद रहेगा। और वो हम ज्ञान बांट के नहीं करेंगे। बेसिकली ज्ञान, जब हम ज्ञान बांटने की बात करते हैं तो हमें एक चीज बहुत जोर से ध्यान रखने की जरूरत है कि ज्ञान के साथ कहीं ना कहीं पात्रता को जोड़ा गया है इंडियन कल्चर में। पात्र का मतलब होता है बर्तन, बर्तन का मतलब होता है कि उसमें जगह हो, उसे होल्ड करने की क्षमता हो। अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं, लेकिन हम लोग ओवरफ्लोइंग बर्तन हो गए हैं। गाए बगाए हमसे जो है ना चीजें, ज्ञान जो है ना ओवरफ्लो होता रहता है और हमें ज्ञान असिमुलेट करने की क्षमता खत्म।
तो यदि हम ज्ञान बांटते हैं और वो ज्ञान सही तरीके से कोई उसे आत्मसात नहीं करता है और उसको फॉल्टी तरीके से यदि वो इम्प्लीमेंट करता है और उसके जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स के लिए वो आपके ज्ञान को जो है वो दोष देता है, तो ये रियली ज्ञान का प्रॉब्लम नहीं है, ये उस व्यक्ति का प्रॉब्लम है, उस पात्रता का प्रॉब्लम है, उस ट्रांसफर का प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा अभी एक हल्का सा अपन जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए हम लोग विभिन्न गैजेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, बाकी टेक्नोलॉजी बैकएंड पे काम कर रही है। हम में से किसी को भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत अंतरंग ज्ञान नहीं है, बट क्या हमें इस बात की चिंता है कि इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी काम कर रही है? यदि जो गैजेट है यदि वो हमको इंटेंडेड सर्विस दे रहा है तो हमारा मकसद पूरा हो जा रहा है। तो क्राइम फ्री भारत का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम उस ज्ञान में पात्र लोगों को खोजेंगे और उन पात्र लोगों की टीम क्रिएट करेंगे और हम अपने ज्ञान को जो है वो सर्विसेज और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। एंड ऐसा जो सर्विसेज और प्रोडक्ट हैं दे विल बी एंड टू एंड। तो अज्यूम करिए कि कोई स्टार्टअप है, उसे जो इनपुट चाहिए वो इनपुट कहीं लेने नहीं जाएगा, सिस्टम को मालूम है, हमारे जो डिजिटल चित्रगुप्त को मालूम है कि किसको क्या चाहिए और वो चीज उसकी जगह पे बेस्ट जो है चीज एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस एट द डोर स्टेप वुड बी अवेलेबल टू देम जी। एंड उससे अच्छी बात यह होगी कि वो उस समय कुछ चार्ज नहीं करेंगे। और चार्ज ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा ध्येय है, क्योंकि जैसे ही वो चार्ज करता है क्षमता बीच में आ जाती है। तो यदि किसी के पास रिसोर्स है जिसके पास क्षमता नहीं है, किसी के पास आइडिया है जिसके पास क्षमता नहीं है, तो हम उस क्षमता का दोहन करें, राइट। और जो भी इनपुट है, जो भी चीजें हैं, वो जो है उसके पास पहुंच गई, वो उसने अपना काम किया, आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। अब उसे आउटपुट बेचने नहीं जाना, डिजिटल चित्रगुप्त उस आउटपुट को जहां पहुंचाना है ये जिम्मेवारी उस डिजिटल चित्रगुप्त की। ओके। अभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेके फाइनेंस बनाने के लिए, टैक्सेशन से लेके इनपुट आउटपुट, एक व्यक्ति जिसने जोखिम लेने की हिम्मत जुटाई है उसे हर चीज पे विचार करना, और किसी भी चैन के किसी भी एलिमेंट के कमजोर होने पे और टूटने पे वो इनिशिएटिव, वो स्टार्टअप फेल कर जाता है। और इट इज द फेल्यूर इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द चैन, इट इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट वी कैन से फेल्यूर ऑफ सम चैन व्हिच इज नॉट रियली रिलेटेड टू हिज कोर एक्टिविटी। ठीक बात है। तो जो सीएफबी का जो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है उसमें हमने एक ये निर्णय लिया है कि हम क्राइम फ्री भारत में नॉलेज नहीं बांटेंगे। नॉलेज विल बी कन्वर्टेड इनटू ए either service or gadget, then there will be research paper on it, there will be IPR and patents on it, and these patents would be allowed to be exploited commercially by others. And if they put that concept, that technology which is patented, jointly patented by us and by the other person, then he will be having the right to make use it for the other commercial purposes. And if he use that for the other commercial purpose, some revenue stream will flow to Crime Free Bharat. And Crime Free Bharat से किटी से जो क्राइम फ्री भारत करेगा उससे भी रेवेन्यू स्ट्रीम उसको मिलेगी। सो इट विल बी ए टू वे रेवेन्यू स्ट्रीम फ्लो। एंड अब दूसरा जो मकसद है क्राइम फ्री भारत का जी, वो दूसरा मकसद बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है कि हम ना तो ज्ञान बांट रहे हैं और ना ही हम आपसे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम राष्ट्र प्रेम, नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कुछ समय के लिए जागेगा और फिर वो लुप्त हो जाएगा, और वो लुप्त हो गया तो हम तो फिर किनारे खड़े हो गए हैं। तो हम आपके
देश प्रेम से जो है आपको अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, हम आपके सेल्फिश इंटरेस्ट से आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। सो वी विल प्रोवाइड यू so much heavy revenue stream. We will provide the vent for your saving with a so heavy return that you cannot afford to not to be part of us. This is a part of philosophy. I am not. It is nothing to do with your thinking. It is to do something with my thinking, right? ठीक बात। Because what I feel कि जो देने का वो है, basically हम सब लोग जो है, we are a selfish people. हम जो है मंदिर भी जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, स्वार्थ से जाते हैं। जो हम में से बहुत एलिवेटेड सोल हैं, यदि वो और कुछ नहीं मांगते हैं तो अपना मोक्ष मांगते हैं, लेकिन बिना मांगने के लिए तो कोई भी नहीं जाता, राइट? तो हमारा जो स्वार्थ है वो कैसा भी हो, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ है। तो स्वार्थ एक बुरी चीज नहीं है, इट गिव्स द एनर्जी टू डू ए जॉब। तो हम हायर जो है सेटिस्फेक्शन के साथ वी वांट दैट द पीपल शुड कम फॉरवर्ड। अब तीसरी बात है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, और बेसिकली वी हैव टू कवर एवरी इंच। मतलब हमें टेक्नोलॉजी और पब्लिक के इंटरफेस से हमें एक डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट करना। अब डिजिटल चित्रगुप्त को थोड़ा सा मैं इलाबोरेट कर देता हूं कि चित्रगुप्त, लक्ष्मण जी, चित्रगुप्त का नाम आपने सुना है? बिल्कुल सुना है सर। सुना है। तो ये माइथोलॉजिकल फिगर है। हाँ, मेरा कैमरा जो है ना किसी वजह से नहीं आ रहा, लेकिन मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ। कोई इशू नहीं है, वक्ता का कैमरा चलता रहे वही पर्याप्त। सो चित्रगुप्त जो है, ही इज बेसिकली अकाउंटेंट जनरल ऑफ गॉड। उनके पास जो भगवान का एक कैरेक्टर है कि ही इज ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट, इन दो कैरेक्टर्स को जो है चित्रगुप्त जो है वो मैग्नीफाई करता है और वो सिग्निफाई करता है। चित्रगुप्त, जब हम लोग मर जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि चित्रगुप्त के अदालत में हम लोग की परेड होती है, हमको अपने वीडियोस दिखाए जाते हैं और हमसे कहा जाता है देखो आपने ये बहुत अच्छा काम किया, ये आपने खराब काम किया। दैट काइंड ऑफ द थिंग्स हैपेंस जी। नाउ चित्रगुप्त आपका वीडियो आपको ही दिखाता है, आपका वीडियो आपके पड़ोसी को कभी दिखाया उसने क्या? नहीं। तो चित्रगुप्त की पहली जो कैरेक्टरिस्टिक अपन ने बताई कि वो ओमनी प्रेजेंट होगा, ओमनीसेंट होगा, and he will be preserving digital evidences also, in terms of the video footage, in terms of other evidence which will be shown to you. तो यदि हम इन दो कैरेक्टर्स को, दो चीजों को यदि हम मिला के देखने की कोशिश करें तो ये दो चीजों को सिग्निफाई कर रहा है। एक वो सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है कि उसको सब जगह वो उपस्थित है और उसको सब कुछ ज्ञात है ऑन बिहाफ ऑफ दिस टू ग्रेट प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, दैट इज omniscient and omnipotent. Now the second उसकी जो attributes है जो कि which is less told, less appreciated, that is how to hold that information within and should not be shared with any third party. तो आपका जो वीडियो है वो आपको ही दिखाया जाता है। So the digital Chitragupta is saying कि your information will not be used for any commercial purpose. It will not be shared with anyone else. And हमने इस डिजिटल चित्रगुप्त का एक एक्ट बनाया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म, एज ए हेड ऑफ एक क्राइम फ्री भारत नेशनल पुलिस मिशन, आपको बता दूं ये जो क्राइम फ्री भारत है, इट इज ए नेशनल पुलिस मिशन which I am leading. It is the mission of the government of India. It is being run under a national police scheme. Earlier this national police scheme
by the part of the Prime Minister office. When the new government took over, new government of Narendra Modi, then this National Police Mission, it was shifted from Prime Minister office to home, and from home it came down to BPRND. So now BPRND is providing that umbrella which was being provided by the PMO earlier. So this is a, to begin with, it was a very, very powerful, very, very focused national police mission. Now it is being run through the BPRND, and basically they are the two national police mission. One is railway crime, and another is the general crime-free Bharat. I am the project leader of both the things, and basically the railway crime and automated system for detection and prevention of railway crime, almost with the same philosophy to have a crime-free railway journey, safe and secure and crime-free railway journey. It is in a very advanced stage, and now it is in a study and implementation phase. Basically, 3-member committee has been constituted, and this committee has been headed, it is being headed by me. And there's one deputy director from BPRND and another deputy director from NCRB. They are part of that team. This team is still has to do it as a intended work. There's some problems here and there. I hope if things are resolved, probably the basic model will be implemented within 3 months or so. Crime-free Bharat is also has gone a very higher level. It is under a level where they are trying to examine that what about the legal acceptability, because we have submitted a framework of law, and I have given the name जिसको हम मैथोलॉजिकली डिजिटल चित्रगुप्त कह रहे हैं, इसको हम टेक्निकली और लीगली कह रहे हैं नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम. ये जो इतना लंबा नाम है, ये सीधा सीधा संविधान से उठाया गया, क्योंकि हम लोगों के ज्ञान से डरे हुए थे क्योंकि वो उसको मिस इंटरप्रेट ना कर लें. सो दिस इज द एंट्री व्हिच हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ यू नो, इंडियन डेमोक्रेसी का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इट इज डिस्क्राइब्ड एंड इट इज ड्रॉइंग इट्स पावर फ्रॉम शेड्यूल 7. आई डोंट नो आप लोग संविधान का कितना मतलब रुचि रखते हैं और उस बात को जानते हैं. यहाँ मैं थोड़ा रुकता हूँ और पूछता हूँ कि आप लोगों को ये शेड्यूल 7 और फेडरल स्ट्रक्चर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 इसकी जानकारी आई प्रिज्यूम के होगी आपको. ओके, सो Vineet ko to hai, because we were preparing for the civil services, so Vineet is certainly aware of that. But I will request you, everything is available on Google, so you please Google. बस उतनी ही है लेकिन आपको कोई बात नहीं. तो उसमें जो है, बेसिकली जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, उसमें शायद इतनी बारीकी से लिस्ट को नहीं देखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारे ज्ञानी लोग जो है, उनके ज्ञान का दुरुपयोग करके किसी अच्छी चीज को कैसे कुंठित किया जाए, इसके लिए वो करना था. तो वी थॉट कि हम जो है ना, सबसे पहले वो फ्रेमवर्क तैयार करें जिसको कोई चुनौती ना दे सके. सो हम लोगों ने जो है एक बच्चों की टीम बनाई और उसमें लीगल एक्सपर्ट्स को रखा, और वी क्रिएटेड ए लीगल फ्रेमवर्क अंडर एंट्री 65C. लिस्ट 1, that is called the central list. It means central list is the responsibility and it is authority also of Government of India. List 2 is for the state, and the list 3 is the concurrent. And the difference between state list and concurrent list, that anything enacted by the state government, it has to be consistent with the whatever has been enacted by the Government of India under list 1. Number 1. Number 2, the second important thing, that if there is any contradiction, so whatever the portion which is contradicting with the list 1, that will be null and void. So even if it is enacted,
it will be treated as a null and void unless that contradiction has been duly examined and approved by the central government and assent of the president has been received. Then that contradiction would be allowed if that part has been given consent by the central government. And the central government will be notified by the president assent to it. Now, list 1, central government cannot look at it. And all and everything which is residual, वो भी list 1 का हिस्सा होता है. Then list 2 जो कि state की exclusive list है, there are 4-5 provision कि उनमें जो है भी जो है ना central government can do the enactment. So there are, and it is so easy कि government of India can enter in any international agreement, and once you enter into the international agreement, Government of India gets the authority to enact law, even when that the subject is part of the list 2. For your information, the Barter Act has been enacted by Government of India in 1973 or so, 72, 73. And water is a part of the state list. And this has been enacted on account of the international agreement which the Government of India had entered, so as to implement that international agreement. That Government of India got that power. So it is very easy for even the subject which are falling in the list 2 to enter in an agreement and enact law. It is so easy. We must know how to manipulate, how to do things. So we created that act. That act has been submitted to the PPRND. It is presumed that they will be submitting it to the home. And finally, if Government of India approves, that may take as a law. It might become act if it is duly enacted or promulgated by our parliament. Till that, we are not ready to wait. We are saying that we will do it from outside. And Crime-Free Bharat, at present, it is registered as a society. Very soon, we are going to register it as a trust, and we are going to register it as a company also, so that all these forms will be used as per the suitability and requirement and attributes available in these 3 forms for the best use of the that format to the objective of the Crime-Free Bharat. Now, this is the legal part, and this is the Chitragupt part. Here, Santosh and his team would be playing a very important role in designing and a database and making it sure that our promise to the public that anything in database that will be absolutely secured. There will be the backend engine which will be on the real-time basis who is interacting from that packet. It will be creating information. So it will be creating its own log. The log will be that IP addresses and other details which are available. And the second part, which is information, is not part of the protocol, but it is available with the packet. So that because ultimately you are connected with Wi-Fi, and Wi-Fi is not getting any confusion. It is everything and anything which is need to be in your device, it is coming to this device. It means our packet is having the address of our device. So that address of our device, that is the MAC address or IMI, whatever that format it may be, it will be captured because it is the volatile information. It is not being captured by the log. So we will be creating our log for getting that information accumulated, so that we need not to depend on anybody to get the information. So Facebook से हमें information नहीं चाहिए. यदि कोई हमसे interact कर रहा है तो वो information हमने real time basis पे तभी capture कर ली जब वो हमसे interact कर रहा है. यदि वो information चाहता है कि हम ना capture करें तो वो अपने घर बैठे, हमें उससे मिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है ना? So now the data mining tool will make it sure, which will analyze the log on the real time basis to find out कि कहीं ये
element of intrusion तो नहीं है. And then intrusion may be done by the two people, insider and outsider. So when we say outsider, he may be, now we are very intelligent people, we coin lot of things, lot of way, ethical hacker. अरे भाई साहब आप चोरी कर रहे हो तो चोर हो ना. Otherwise, you become the partner with us in evolving and designing solution, and that should come as a form of a product. Otherwise, all hackers are hacker. They are bloody sure, and we would like to put them behind the wall. And this digital Chitragupt, in the law, we have provided very stringent provision for the insider and for the outsider. So anybody from inside, if he use that information for other than intended purpose, the purpose we have already explained, right? Including guarantee of privacy. So anybody share that information with anybody or with a politician or with anybody, it will be an offense. The offense will be cognizable. It will be non-bailable with very, very difficult bail provision. And minimum 7 years of punishment. And there will be provision if the person commits more than one offense, there will be restriction that no punishment will run concurrently. We will put this provision where we will be restricting the discretion of the court that it cannot award concurrent punishment. So if you have committed 5 irregularities and it will run sequentially, it means 7 into 5. You are supposed to be in jail for 35 years. You will be rotten in jail. Whether somebody is insider or outsider, they are all विद्वान people हैं, समझदार लोग हैं. वो जिंदगी अपनी जेल में नहीं बिताना चाहेंगे. They will not do anything which is not expected from them. हम जो है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की जो बात करेंगे वो इसलिए नहीं करेंगे कि हम आपसे डरते हैं. हम तो उल्टा कह रहे हैं कि हम अपने घरों के ताले खोल के रखेंगे और चैलेंज करेंगे कि बेटा तेरी औकात हो तो चोरी करके दिखा. We will talk in this language. क्योंकि जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो, then you are creating an opportunity and challenge on the other side to devise better technology, better जो है ना engines to intrude into your privacy. When I will take away the very your gust of जो है ना doing it, then you will forget to really go into that dimension. So हमारी जो thinking है वो जो है आपको जो है ना जो गड़बड़ करने वाले हैं उनको जड़ से काटेगी. ठीक है ना? So इसमें बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ द 5 सर्टेनिटी. अभी हमारी जो मुख्य प्रॉब्लम है वो हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और या रिपोर्ट नहीं कोई लिख रहा. रिपोर्ट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमसे अच्छा सलूक नहीं होता है. रिपोर्ट हम इसलिए नहीं करते हैं, छोटी चीज है, कौन जो है ना लपड़े में पड़े. ठीक है ना? रिपोर्ट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यदि लिख भी ली जाएगी तो डिटेक्ट तो होना नहीं है. तो क्यूमुलेटिव हम रिपोर्ट नहीं करते हैं और फिर हम रिपोर्ट कर देते हैं तो पुलिस भी जो है ना बहुत स्मार्ट हो गई, उसे अपने वो डिटेक्ट करने की स्थिति में तो है नहीं, तो वो आपसे एप्लीकेशन ले लेती है. कानून में एप्लीकेशन लेने का कोई प्रावधान नहीं. अब जहां कानून में कंप्लेंट लेने का प्रावधान ही नहीं है, इट इज ओनली हैविंग द 2 सेक्शन 154 एंड 155 फॉर पुलिस. 154(1) कहता है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आती है तो आपको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, और यदि रिपोर्ट जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है तो भी आपको दर्ज करना पड़ेगी और आप उसको जो है ना वो रिपोर्ट लिख के दे दीजिए. दैट इज कॉल्ड एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट. एंड नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत लिखी जाती है. और मैं चाहूंगा कि जब आप इस सेशन के बाद यू प्लीज गूगल आउट दिस सेक्शन and read for themselves, because that will be a more informed जो है participation rather than taking the things on the say on the trust value or on the faith value. So we will be basically very open and we will examine everything. Even when we are talking of the law,
We will not accept that Maitri Sharan Gupta has said that's why it must be in constitution. We must not say that it is must be in the part of the law. We will debate on that. We will, if required, we will debate with the legal luminaries also, and we will say whatever is we are saying. We are talking law, we are talking of constitution, and we are talking of now implementation. So जब जो है कंप्लेंट का प्रोविजन नहीं है तो भाई एडिशनल डीजी कंप्लेंट क्यों है, डीजी कंप्लेंट क्यों है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच में और सरकार की सोच में और सभी की सोच में जो है ना, हमने इतना दोष डाल दिया है कि नाउ आप भी कंप्लेंट देने जाते हो। जब कंप्लेंट का पुलिस में प्रावधान ही नहीं है तो आप कंप्लेंट देने क्यों जाते हो? आप या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट करने जाइए या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट करने जाइए। यदि नॉन कॉग्निजेबल केस होगा तो पुलिस का फर्ज बनता है कि वो आपकी रिपोर्ट लिखेगी और आपसे कहेगी कि ये नॉन कॉग्निजेबल है, भाई साहब आप कोर्ट में जाइए। एंड देन कोर्ट का फर्ज बनता है टू हेल्प यू आउट टू सेटल द थिंग्स और डिसाइड द थिंग्स इन कोर्ट ऑफ लॉ। अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ नहीं कर रहा है, एंड हमने जो है ना उसमें इतना डिले डाल दिया है। नाउ क्राइम फ्री भारत इज सेइंग कि अभी कोर्ट में जो 3.18 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, हम उन्हें 2 साल में जो है रिजॉल्व करेंगे, और आने वाले केस में हम 7 दिन से 3 महीने के अंदर कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस को लॉजिकली एग्जॉस्ट करेंगे। इट मींस विद इन दैट 3 मंथ इवन द प्रेसिडेंट जो है ना डिस्क्रिशन टू पार्डन विल आल्सो बी कंप्लीटेड, एंड दिस विल बी डन through this system only. The only difference would be that court trial will be happening through our system, that is the distributed video based court trial system, which will be highly efficient system. We will be in position to do lot of research, we will be in position to go into the lot of dimension. It will take away the freedom of the defense lawyer to basically, if you read the law very properly, whatever the advocates are doing, majority of their activity, they are offense in law, and that those offenses are being committed in the very court which is supposed to take cognizance and prosecute them. Court which is already crippling under the overload of criminal cases, it can ill afford to take the cognizance of this kind of the violation. So the distributed court trial system will be a panacea for the public, for the advocates, for the judges, for the public at large, and it will be making justice fast, and it will be very prompt, very transparent kind of the justice. So creating distributed video based trial system is also one of the priority of Crime Free Bharat initiative. Then our out of box thinking will run lakhs of the जो है ना court proceedings simultaneously, and we will use innovatively कि इन छोटे दो आपको गाली दी कि नहीं दी, इसके लिए विद्वान जज की क्या जरूरत है? हमारे संतोष जी जो है ना क्यों डिसाइड नहीं कर सकते इस केस को? संतोष जी आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि इसने गाली दी कि नहीं दी? नहीं। Yes or no? So with little training, we can create public judges for the lower kind of the offenses, right? So that higher offenses which cannot be handled by the normal people, we will create the specialized judges for that. If required, we will train our judges, and that manipulation which is being done by the advocate, it would not be doable. And court will be having one more advantage. It will be having advantage of the CFB advocacy. So there will be the 3 pillars. One is prosecution lawyer, second is defense lawyer, and third will be the CFB advocacy. हमारा इंजन जो है ना रिलेवेंट जजेस की चीजों को निकाल के जो प्रोसिक्यूशन लॉयर नहीं कह रहा है, जो डिफेंस लॉयर नहीं कह रहा है, क्योंकि दोनों में साठगांठ हो गई है, वो CFB जो है ना एडवोकेसी कहेगी, एंड इट विल हेल्प द जजेस टू रियली impart judgment, that too very fast. If our vision is implemented, we would be in position to dissolve
3.18 crore cases. That is our commitment to the nation. And we will bring the absolute transparency. If in future, if Government of India agrees with us, we will convert the election where there will be no expenditure limit. It means it will be zero expenditure election. You will not be allowed to create any electioneering material. Creating electioneering material would be an offense. The same vital video waste this, it can be done at the village level, block level, this level. आप आइए अथॉरिटी पे कहिए वो पहले क्या कहा था, वो पहले आपको दिखाएगा पब्लिक को, एंड देन फिर इसके बाद डिबेट होगी. सो वी विल बी हैविंग वेरी इन्फॉर्म्ड इलेक्शन प्रोसेस. सर मुझे 2 मिनट में ड्रॉप करना होगा, मेरी एक मीटिंग है, बट आपका जस्ट समझ गया मैं कि we are creating a third empire on the field. I will stop explanation. Now I will say what you are supposed to do. You have to work very fast. All 21 or more than 21 technology we are working, you have to make a list of that. You have to look for the resources and mentors. We have to basically become that guru for them. N number of the interns, they are there. We are having a CFP methodology, how to do it. It is a research-oriented methodology. My secretary, National Secretary, Mr. Manish, will be sharing those documents with you, so that that will be guiding you. So the purpose of let's start working that how we can really find out right kind of NRI, right kind of the Indian diaspora sitting in any part of the globe, bringing them together to create this solution and promise them they are going to get wealth. वो इतनी wealth उनको मिलेगी कि वो उसे होल्ड नहीं कर पाए, बिकॉज हर इंडियन बहुत वेल्दी होने वाला है. तो इट्स नॉट यू अलोन, द पीपल दोज हु आर इंडिया, दे विल बी द 3 or 4 times वेल्दियर, राइट? सही बात. तो मेरे ख्याल से क्योंकि संतोष जी को किसी मीटिंग में जाना है, तो वी कैन अलाउ हिज एग्जिट एंड फॉर सम टाइम वी विल कंटिन्यू दिस डायलॉग. So it will be so Santosh ji, whenever you feel, you can just quit and we will continue for the meeting for 15-20 minutes more, right? So till you feel you are comfortably placed, we continue, and you can really exit at your will. And in any case, this video will be uploaded on Crime Free Bharat. So with your convenience, you can visit what we have discussed. So even you will not be unaware of that. So I think by tomorrow this video will be in air, because the National Secretary is here, and it is his responsibility to put it live on not live, put it on Crime Free Bharat things, so that it should be available for the larger consumption. Because I want everybody to see. If they want to copy our ideas, we are more than happy. If they want to join and do it with us, we are more than happy. So we are not afraid कि हमारा आइडिया चला जाएगा तो हमारा वो हो जाएगा. We are just not afraid. एक्चुअली मेरा फोन बिल्कुल मरने वाला है. आई एम एट 1% बैटरी. आप जो है ना बिल्कुल मरने वाला काम मत करिए. आप उसमें जो है ना एनर्जी सोर्स को जोड़ दीजिए. नहीं, मैंने कनेक्ट किया हुआ है. आई डोंट नो कि क्या हो रहा है. आई एम कनेक्टेड. वो इतनी देर में 10% से घटते घटते 1% आ गया हुआ. ऑल्दो आई एम कनेक्टेड टू द पावर. तो मुझे लगता है कि we will have the second meeting. Rather let's if you agree, we make it a now this कि as per the Indian time, weekly we will be meeting for 10 minutes, 15 minutes, where we will be really ensuring what has been done in the last. Now I will focus more what we intend. Number one, identifying the right kind of the skill set in all domain, in policy domain, in law domain, in technology domain, and making their groups for each technology separately, so they will be the part of the larger group. At the same time, let's create the subgroup also, which will be technology-based group, so they can focus on the technology part. They can contribute. They can contribute and hire resources. So some right kind of the resources could also be hired who can work 24 hours into 7 on behalf of you, and they can guide interns, because
we are having the crime-free Bharat methodology. We will not allow anything. So we are not looking for the solution. We are looking solutions which should be designed by us, which should be patented by us, and they will be reviewed and updated every 3 months. That is kind of with the frequency, we will be revising our own solution, because we are of the considered view that there is happening the explosion of knowledge. We cannot afford to remain static. So our solution has to be evolving. यदि उसमें कोई नई एल्गोरिथम आई हुई है, नई वो आई हुई है, तो हम उसको करेंगे। और हम जो है ये कोशिश करें कि हमें हर तरीके के लोग चाहिए। जो टेक्नोलॉजी से जिनका कोई लेना देना नहीं है वो भी चाहिए, क्योंकि दे विल गो फॉर द एडवोकेसी, दे विल गो फॉर द मीडिया एंड पब्लिसिटी, एंड they have to talk about the crime-free Bharat in their country, in India, and everywhere. Okay. They can conduct their own conferences, and if I am available, I may join. Otherwise, they can discuss at their level, and that video recording should be done through our link. So that will be recorded and that will be uploaded on our crime-free Bharat YouTube channel. We want कि हम कोई भी काम secretly नहीं करेंगे. That the globe should know what we are doing. ठीक बात है। अब हम थोड़ा सा, चूंकि आप डॉक्टर हैं तो हम मेडिकल फील्ड पे नहीं आएंगे, तो I am doing some not a proper service to you. Sure. So we are doing a lot of negative things. You are a doctor, you will understand. I am having very wide exposure. I think I have visited all the part, most of the country, lot many country I have visited. So I am having very personal experience of what is there. And in few experiences I have learned. In one of the cases, one Bhutani officer was with him and he उसको कुछ चक्कर वक्कर आ गया है, हम लोग बहुत वो जो है ना चिंतित हो गए, मुझे लगा क्या होगा इसका. So immediately we called 909 and वो सब कुछ हुआ और उसमें उसका MRI हुआ, ये हुआ. But till our departure day, they did not give even one tablet to that person. Now, the allopathy which has come having the root in Europe, which is having the root in other country, in India, यदि आपको खांसी आती है तो वो आपको 7 दिन का जो है ना एंटीबायोटिक. सही बात. तो जहां से एलोपैथी आई है वहां पे नहीं दे रहे हैं, और आप उस गधे जो है ना डॉक्टर से बात करो तो वो कहता है कि साहब हमारा तो ये प्रोटोकॉल है. तो मैं हमेशा निवेदन करता हूँ डॉक्टर भाई से कि भाई साहब ये प्रोटोकॉल आपने कहाँ से लाया, हु इज द सोर्स ऑफ इट. तो उनका प्रोटोकॉल जो है वो फार्मेसी कंपनी डिसाइड करती है. बिल्कुल सही. कौन सा टेबलेट देना है ये भी फार्मेसी कंपनी डिसाइड करती है. वो केवल ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस देश के जो है ना कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है, उनको किस होटल में रुकना है, ये सब डिसाइड करते हैं हमारे डॉक्टर. बाकी सब चीजें डिसाइड करती है फार्मेसी कंपनी. No, I politely disagree with all these things because there is so much stuff. But once you finish, I will say something. देखिए. It is not question of agreeing or disagreeing. We are talking whatever is happening on the ground. यदि हम उससे आंख बंद करेंगे तो then we are denying what is happening in India. तो वो आपके एग्री या ना एग्री करने की बात नहीं. यदि ये यथार्थ है तो ये मानना पड़ेगा. 15 साल तक हम इंडिया में इतनी दुष्टता पे चले गए हैं कि वो जो है रिपोर्ट लिखाता है, वो जो है टेस्ट लिखता है, और उस व्यक्ति ने टेस्ट कराया तो वो कहता है ये टेस्ट मैं नहीं भाई मानता. आप तो इस पर्टिकुलर जो है ना क्लिनिक से टेस्ट कराइए, इस पहले लेबोरेटरी से टेस्ट कराइए, तभी हमें वो तो बेकार है दूसरा वाला. क्यों? क्योंकि जहां से वो टेस्ट कराता है उससे उसे कट मिलता है. हम तो दुष्टता की इस पराकाष्ठा तक पहुंच गए. अब आप बीइंग डॉक्टर, चूंकि इसको आप प्रहार मत मानिए, इसको एज ए डिसीज मानिए. इन डिसीज को यदि हम ठीक कर देंगे तो हमारे जो डॉक्टर देवता कहलाते थे, गॉड कहलाते थे, गॉड का अवतार कहलाते थे, वो फिर से उसी रूप में पहुंच जाएंगे. तो ये जो छोटे ऑपरेशन, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो किसानों में हो, चाहे वो दूसरे उसमें हो, चाहे बिजनेसमैन में हो, वो यदि हम ऑपरेशन को दूर कर लेंगे तो हम सभी लोग देवीय हो जाएंगे. अभी हम सभी लोग डेथ हो गए. देखिए आप, भैंस वाला, गाय वाला भैंस को हार्मोन के इंजेक्शन दे रहा, मुर्गी वाला जो है ना मुर्गी को जो है ना हार्मोनल इंजेक्शन दे रहा, फल वाला जो है ना उसको भी इंजेक्शन दे रहा है, कोई उसको कोट कर रहा है, कोई रंग पोत रहा है, कोई जो है ना उसको कार्बाइड से पका रहा है. हमने पूरी दुष्टता को जो है ना लाद लिया है.
हमने नॉलेज का दुरुपयोग किया है। ये बताइए मुझे, बीज का मुख्य कार्य क्या है? प्रोपोगेशन। डू यू एग्री? सही बात। बीज का मुख्य कार्य प्रोपोगेशन है, और यदि हम जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड को लेके आते हैं सिर्फ अपने कॉमर्शियल लाभ के लिए, तो जिस चीज की जो प्राइमरी चीज है, जिसको आप ग्रेन कहते हैं, वो बीज है बेसिकली, और उसकी प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट और उसका प्राइमरी वर्क है हाउ टू प्रोपोगेट इटसेल्फ। सही बात। अपनी फसल को आगे बढ़ाने का वो जो है सीड है, और हम दुष्ट लोगों ने उस सीड को जेनेटिकली टर्मिनेट कर दिया है सिर्फ उसका कॉमर्शियल दोहन करने के लिए। हम लोग इतने दुष्ट लोग हैं, और यदि हम दुष्टों को दुष्ट नहीं कहेंगे तो वो एक्सपोज नहीं होंगे। तो इसलिए यस, तो मेरा Please. हाँ, मेरा कुछ विचार है। जब से मैं दिल्ली में भी काम किया है एज ए डॉक्टर, जयपुर में भी किया है, परिस्थिति बड़ी टेढ़ी है जैसा आपने बोला है, और फिर यहाँ अमेरिका में आके काम किया तो कुछ चीज़ें यहाँ से भी मैंने सीखी है कि हाउ द मेडिकल लाइफ वर्क्स हियर, हाउ द लॉ वर्क्स हियर, यू नो। तो मेरे इनपुट्स आपको ये हैं, अपने काम की बात जो है, बाकी तो वी कैन टॉक, यू नो, एंड अपने काम की बात ये है कि हमें स्वयं को पहचानना है कि हम कहाँ से आए हैं। मेरा मानना ये है, वी केम फ्रॉम योगीज ऋषिज। जो योगी ऋषि हैं, या तो जो योगाचार्य जी हैं, क्या बोलता हूँ मैं, तीन चीज़ बोलता हूँ, योगी, ऋषि और ध्यान वाले जो लोग हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं। और हमारी जो कॉन्टेक्स्ट है उस हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से खाना, आयुर्वेदिक हिसाब से रहना और योग डेली करना हमारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत आवश्यक है। जब से हम ये भूले हैं, तो 15 साल की गुलामी है, 20 साल की, जो भी 50 5 साल की गुलामी है, एक तो हम एक दूसरे को कूट पीटना सीख गए बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर की बुराई करेगा, और डॉक्टर करेगा इंजीनियर की बुराई, फिर ये हम एक तो बुराई करना बड़ा अच्छी तरह से सीख गए हैं, और एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को काट पीटना बहुत अच्छी तरह सीख गए हैं। उसमें क्या होता है कि जो मैं समरी बोलता हूँ आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो मेरे ग्रुप्स हैं, आपका काम बहुत शानदार है। देखो, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे जितना हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अदर दूसरे कमिटमेंट भी है। जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में मेरे इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया कि मैं कितना इन्वॉल्व हूँ। इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाता हूँ मैं, उसके अंदर जैसे गाय के गोबर से दीपक बनाने का प्रोजेक्ट है, और जैसे अंधों के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोग्राम है जो ब्लाइंड्स है उनके लिए, या फिर सैनिटरी पैड बांटने का प्रोग्राम, मतलब देयर आई एम इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स। सो हम जब प्राइवेट बात होगी तो वी विल नो ईच अदर बेटर। बट मुख्य जो बात मेरे को समझ में आती है, हमको अपने आप को पहचानना है कि हम हैं क्या, और हम हैं योगियों की और ऋषियों की संतानें। तो जो आप रिसर्च कर रहे हो, वो आपके अंदर एक ऋषि जी बैठे हुए हैं, वो निकल के आए हैं, और सर्व वसुदेव कुटुंबकम की भावना से आप निकल के आए। तो हमको सबसे पहले ये पहचानना है कि हमको अंग्रेज कुछ नहीं सिखा सकते। पहली बात तो ये, हम खुद स्वयं स्वयंभू बढ़िया है लोग हैं। और सबसे पहले मेरी नज़र में सबको गीता जी पढ़नी चाहिए, योग आना चाहिए सबको, और आयुर्वेद फॉलो करना चाहिए। तीन चीज जब फॉलो कर दी, और जिस आदमी ने गीता जी नहीं पढ़ी वो किसी काम का नहीं है, ना अपने काम का ना किसी दूसरे काम का। ये तो आपने कह दिया कि बहुत सारी चीजों मैंने नोटिस कर रहा था कि आदमी को, जैसे आपने बोला स्वार्थ और परमार्थ की बात, जहां तक है गीता जी में क्लियर कट लिखा हुआ है, जब आप स्वार्थी होते हो तो आप जीव अवस्था में रहते हो। जब जैसे आपने दूसरे का भला करने गए तो परमार्थी हो गए। अब आप परमार्थी कर रहे हो, आपको क्या मतलब, आप ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश लोग हो, है ना। अब परम, जो पर अर्थ नाम का कोई वर्ड नहीं होता, परमार्थ होता है, फिर वो दूसरे का भला करने गए। तो ये सब बेसिक्स हमारे वेदों में, हमारी उपनिषद में, सब में लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या है, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भस्त्रिका और 2 योगासन नहीं कर सकते हैं, और पूरा नॉलेज पूरी दुनिया में बांट देंगे हम। जो आदमी 5 मिनट ध्यान नहीं कर सकता, वो पूरी दुनिया में नॉलेज, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मतलब आपने बीमारी की जड़ शुरू में बोल दी थी कि नॉलेज सर बह रहा है, कान में से, नाक में, सब जगह से नॉलेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भरा पड़ा है। लेकिन कोई उठ के सूर्य नमस्कार करना नहीं चाहता। मैं स्वयं 13 सूर्य नमस्कार 1 साल किए, 26 के 6 महीने, और अभी पिछले 6 से 8 महीने से मैं 70 सूर्य नमस्कार, अभी आपकी मीटिंग हुई थी उससे पहले 70 सूर्य नमस्कार करता हूँ 21 मिनट्स के लिए। 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट ओम का जप, और ये सब मेरा पैकेजेज है। तो मैं ये करता ही करता हूँ। उसके बाद मेरे को 1-1.5 साल में पता चला कि अपने देश के लिए क्या करना है। उससे पहले मैं खुद भी अपने शरीर में, अपने परिवार में, इसमें ही उलझा रहता था। अब मैं उलझा हुआ नहीं हूँ। अब मैंने 2 घंटे सेट कर लिए है कि मैथिली जी की मीटिंग होनी है, 2 घंटे में कोई लोचा नहीं है। अगर कॉल आ गई तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आई एम ऑन ड्यूटी।
उसके अलावा कोई जंजाल नहीं है। मेरी वाइफ का फोन आया, मैंने कहा वैदिक इस समय वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके तुरंत बाद हम आधे घंटे बात करेंगे आपसे। और ये सब गीता जी से सीखा मैंने, नोबडी कुड टीच मी। और जहां तक डॉक्टर्स की बात है तो दो चीज करनी है अपन को, आपने बिल्कुल सही कहा, हमको ये पहचानना है कि हम एलोपैथी से बेस्ट क्या ले सकते हैं। एलोपैथी नहीं हो तो लोग 37 साल में मर रहे थे उसी आयुर्वेद वाले देश में। 37 वाज द एवरेज एज एट द एज ऑफ फ्रीडम टाइम, मतलब फ्रीडम नहीं, 100 साल पहले 37 के पहले मर रहे सारे इंडियन। फिर एलोपैथी आई, उसने पोलियो को भगाया, टीबी को भगाया और स्मॉल चिकन पॉक्स को भगाया। तो हर पैथी से हमको बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आयुर्वेद जो है वो माता है, योग जो है सबका पिता है स्वास्थ्य के लिए, और एलोपैथी वगैरह अच्छे अच्छे सन हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा सा लुक में भी ठीक अच्छा लगते हैं। सो हम बिल्कुल ठीक है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन का मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें एक होम्योपैथी का डॉक्टर होता है, एक आयुर्वेद का होता है, एक न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट होता है। तो जो आप बोल रहे हैं हम प्रोजेक्ट हमारे हिसाब से हम अलग से कर रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ कुछ लोगों को कि भाई सब मिलके बात करो, सब मिलके बैठ के। दूसरा मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलना चाहता हूँ, जैसे ही आप जैसा आदमी जिसकी लाखों लोगों में फॉलोअर, आपका मैंने पूरा वीडियो देखे दो, आपके आने से पहले जब मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था उस दौरान मैंने पूरा 1 घंटे का वीडियो आपका से हटा दिया, बिकॉज आई वांट टू नो कि हाउ कैन आई बी यूजफुल फॉर यू। देखो आपके पास आइडिया है, आप आज आइडिया लेने के लिए नहीं आए हो, आप ये आए हो कि लक्ष्मण जी आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू। टेक्नोलॉजी में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बट आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कहीं सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, कहीं कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जैसे अपने मनीष जी हैं आपके जो उनको कुछ और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसमें हेल्प करूंगा, आई एम विद यू। और जैसे कभी आपने बोल दिया कि हम 15 लोग हैं, आप आके 15 मिनट हमको ये बताओ कि हमको स्वस्थ कैसे रहना, तो वो मैं करूंगा बिल्कुल, आई एम विद यू, है ना। और जैसे कभी आपको बिल्कुल आपको मजा आ जाए कि यार आज तो भजन सुनने लक्ष्मण जी, आपको इस तुम मस्त भजन सुना के, वो भजन में गाता हूँ एकदम, ढोलक बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ। सो हम जो हैं हमको स्वयं पहचानना पड़ेगा कि हम क्या हैं। फिर तो संविधान तो अपना है ही, जैसे आपने इतनी मतलब आपने जो इतनी बातें बढ़ाई, इतना नोट्स बना रहा हूं मैं सीखने के लिए कि ये तो मेरी पहली क्लास ली आपने कि पुलिस कैसे काम करती है, ये सब कितना इट्स वंडरफुल, इट्स अमेजिंग टू सी। ऐसे ऋषि लोग जो आप जैसे रिसर्च कर रहे हैं अपने इसमें, तो मैं आपको बिल्कुल सादर प्रणाम करता हूँ। इतना बढ़िया आपने काम किया है, जबरदस्त। और बिल्कुल आपका जो देखो आपका फील्ड मेरा फील्ड आपका बिल्कुल अलग फील्ड है, हम डिसएग्री हो सकते हैं, 100% अपोजिट हो सकते हैं, बट एक कॉमन चीज अपन दोनों में है। एक कॉमन चीज मैंने ये की है कि आपके अंदर जो जुजुस्सा है, जो परमार्थ की भावना है, उसके हम बिल्कुल आपके कड़क बिल्कुल साथ रहेंगे। बाकी तो और अपन जानेंगे एक दूसरे को, वी विल लर्न अबाउट ईच अदर। अभी डॉक्टरों की, अब मैं आपको एक दो छोटी सी जाती है, डॉक्टरों के सिर फोड़ देते हैं लोग, है कि नहीं। वही एक तो जो आदमी सिर फोड़ दिया, हमारे 2-3 दोस्तों की क्लिनिक तोड़ दिए डॉक्टर पेशेंट, मतलब जो पब्लिक ने। अगर इस तरह से आप डॉक्टरों को करोगे तो वो बिल्कुल मन से काम नहीं करता, वो डर डर के काम करता है। जैसे आपके राइट हैंड में दर्द हुआ, मैं आपको बताता हूँ हमारा डायलेमा क्या है, डॉक्टरों का भी डिटेल में बताएंगे, अभी तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो अब आप हाथ में दर्द करके आए हो, उसके 15 कारण हो सकते हैं। अब 15 कारण में पहले मैं मेरा तो क्लिनिकल जजमेंट यूज करता था, नब्ज देख ली इधर भाई, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है ये, इतना सा काम कर लो आप, काम हो जाएगा। अब क्या मेरे को डर लगता है कि आपके हाथ में दर्द है, मैंने डायग्नोसिस मिस कर दिया तो आप मेरे को शू कर दोगे या कूट दोगे आके, 10-15 आपके पुलिस वाले लाके हमको कूट दोगे, नेस्तनाबूद कर सकते हो हमारी क्लिनिक को। कुछ डॉक्टरों को मार भी दिया गया है। आपको पता है कितने डॉक्टर मरे हैं पिछले 2 साल के अंदर बाय पब्लिक। एंड दिस इज द रीजन कि एक कारण ये है कि डॉक्टर बहुत प्रिकॉशनरी काम करते हैं। एंटीबायोटिक का बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, अमेरिका में देना बंद कर दिया, इंडिया में एंटीबायोटिक चल रही है। मैं मेरे बच्चे को दिखाने गया, एक डॉक्टर दोस्त है मेरे, वो धड़ाधड़ दवाएं लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई पूछ तो ले, हाथ तो लगा ले पेशेंट के भाई। तो वो बिल्कुल मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई 100% सही है हमको। लेकिन बड़े स्केल पे जब भी हम जाते हैं, मेरा एक निवेदन है, आप बड़े भाई हो, मैं लक्ष्मण हूं, आप राम हो, ये मान के चलो। तो मेरा निवेदन ये है, बड़े स्केल पे कभी भी काम हो रहा है, जैसे आपको 1 लाख लोग सुन रहे हैं, जैसे आप ये वीडियो अपन डालेंगे, कभी बड़े स्केल पे अपन को किसी भी प्रोफेशन की उनका वीडियो, ठीक है मनीष जी? यस इट्स फाइन सर। हाँ, अपनी व्यूअरशिप बहुत बड़ी है, तो उसके अंदर हमको मेरे विचार से क्या मतलब, आप तो ऑलरेडी काम इतना बड़ा काम कर रहे हो, आई थिंक वी कैन कनेक्ट मोर पीपल लाइक सेम इंटरेस्ट एंड वी कैन मेक टीम बिगर एंड बिगर।
और जो भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं मैं बताता हूँ अमेरिका में, दे आर ऑलरेडी डूइंग सो मच अदर स्टफ ऑल्सो, ठीक है ना। सो बट डेफिनेटली वी हैव, हमारे पास अप्रोच है। मैंने एक दो दोस्तों को आज भी बोला था कि आप कनेक्ट कीजिए, फिर आपका जवाब आया नहीं, बिकॉज आई आस्क्ड यू कि उनको ला सकता हूँ क्या, तो लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, तो फिर मैंने उनको नहीं लाया। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। I am sorry. It was presumed that I was making all the time request to bring more people. नहीं, फिर वो एक थोड़ा सा मैंने सोचा कि सेफ्टी का मैटर है, अपना अपना अपने ग्रुप का, अपने ग्रुप का मैटर है, तो आई नीडेड योर परमिशन, बट ठीक अगली बार ले आऊंगा। चलिए अगले ट्यूसडे को करेंगे। नाउ दिस विल बी अ रेगुलर फिनोमेना। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो महीने में एक बार तो करो कम से कम, एवरी वीक तो मुझे पॉसिबल मुश्किल हो जाएगा, हो पाए। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। या सो मैं उसमें ये कह रहा था कि जो चीज हम पैदा करें, जो हमने प्रोडक्शन में डिस्टॉर्शन ला दिया है, हमारी बड़ी एग्रो टीम काम कर रही है। बहुत जल्दी वी आर ब्रिंगिंग ए मॉडल थ्रू टेक्नोलॉजी हाउ टू ब्रिंग द बैलेंस इन द एग्रीकल्चर। आगे चल के इंडिया में ग्रेन भी अमृत पैदा होगा, केसर भी अमृत होगी, संजीवनी भी होगी, हर्ब्स भी होंगे, और मिल्क होगा। तो हम अकेला मिल्क पैदा नहीं करेंगे, अल्फा 2 वैरायटी का भी मिल्क पैदा नहीं करेंगे हम। जो मिल्क जो है, मिल्क फॉर ब्लड प्रेशर, मिल्क फॉर जो है ना आपका हार्ट अटैक, मिल्क फॉर दिस, मिल्क फॉर दैट, मिल्क फॉर लीवर, मिल्क फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। हम ऐसे ही शहद भी जो पैदा करेंगे, इट विल बी हनी फॉर दिस, हनी फॉर दैट। हम जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है ना हनी में ले जाएंगे, जिसमें कि वो मेडिसिन का काम करेगा। और फिर हमारे लोग उस मेडिसिन को इंटरनेशनल प्राइस पे नहीं बेचेंगे, दे विल सेल दैट प्रोडक्ट एट 10 टाइम्स ऑफ इंटरनेशनल प्राइस। उसमें इंडिया की प्रोडक्शन सेल, डेट, टाइम, लोकेशन जो हम क्राइम के लिए कर रहे हैं ना, वो हमारे प्रोडक्ट पे भी लगेगी। और जो पैदा करने वाला यदि गड़बड़ करेगा, तो उसी बेरहमी से, जैसा कि हम क्रिमिनल को ट्रीट कर रहे हैं, उसी बेरहमी से हम अपने किसान को ट्रीट करेंगे यदि वो एज ए क्रिमिनल पेश आए। तो नंबर 1 दिस इज द, हम जो है अन्न और खाद्यान्न और हर्बल्स और उनको जो है और मिल्क और हनी को ट्रीट करेंगे। दिस इज वन पार्ट। देन वी वांट टू गो फ्रॉम ट्रीटमेंट टू हेल्दी लिविंग। और इसमें हमारी फिलॉसफी है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। दैट इज द सेकंड फिलॉसफी। बिल्कुल सही। एंड थर्ड फिलॉसफी व्हिच यू आर टेलिंग कि लेट देयर बी इंटीग्रेटेड पैथी। So integrated pathy should not be only for the treatment. Integrated pathy should be primary treatment, secondary and supportive treatment also. तो जहां पर एलोपैथी को प्राइमरी रोल अदा करना है, वहां आयुर्वेद, नेचुरोपैथी and these pathy will come together to do the supportive role so that the negative effect of the allopathy could be minimized. And the allopathy का यूज करना जरूरी है because चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि it requires the surgical intervention. यदि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। तो हमें उस ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, डिसीज सेल को रिमूव भी करना पड़ेगा, बट और कीमोथेरेपी भी करना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लो कीमोथेरेपी का जो नेगेटिव इफेक्ट है, यदि हम उसको आयुर्वेद से, होम्योपैथ से या यूनानी, आयुर्वेदी और व्हाटएवर नेचुरोपैथी, यदि हम उसको कुछ हद तक मिनिमाइज करते हैं, तो हम जो है ना वी विल बी डूइंग द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अब अभी जो पैथीज हैं वो अपनी पैथी की सेवा कर रही हैं, हमें ये पैथी की सेवा से ह्यूमैनिटी की सेवा पे जो है ना इन पैथीज को ले जाना है। सो द फोकस शुड बी ह्यूमैनिटी, फोकस शुड नॉट बी पैथी। योर लॉयल्टी शुड बी विद द ह्यूमन रेस और ह्यूमन काइंड, योर लॉयल्टी शुड नॉट बी विद द पैथी। पैथी इज जस्ट ए मीन्स, एंड इज द ट्रीटमेंट एंड हेल्दी लिविंग ऑफ द ह्यूमन काइंड। सो दैट इज माई फिलॉसफी एंड आई फील के यदि आप देख रहे होंगे तो आपके जो है ना सोच से ये काफी मेल खा रहा हो। बिल्कुल सही। और बेसिकली मेरी एक सोचना ये है कि वी विल नॉट वर्क ऑन द पार्ट सॉल्यूशन, वी हैव टू वर्क फॉर द इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, ए साइक्लिक सॉल्यूशन। तो हम किसी एक सेगमेंट पे फोकस, जो आप अपन लोग कहते हैं ना भैया मैं तो इस पे काम कर रहा हूँ, इस पे काम करना नहीं चलेगा। हमें सब लोगों को सब काम को करके एक साइक्लिक
एंड फाइनल जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो भी काम करेंगे उसके डिस्टॉर्शन जो है विल rather than giving benefit they will start in giving the negative effect also. लेकिन यदि साइक्लिक सॉल्यूशन है तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए. सही बात है. वेरी नाइस आइडिया, वेरी नाइस. सो दैट इज द सेकंड पार्ट. और इसके 3 पिलर्स है, क्योंकि 4 पिलर हैं. एक पिलर है टेक्नोलॉजी, दूसरा पिलर है लीगल एंड एडवोकेसी, एंड थर्ड पिलर जो है इसका क्रिएटिंग द पब्लिक सपोर्ट. तो अभी जो है आपके ग्रुप में जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमारे मनीष please share that document of our methodology, CFP methodology also. Sure, sir. Sure. So you can share. We will share the concept note which has been submitted to the government of India. Let you will feel it is a already submitted concept note. Then we will share that outline, and then we will share our research methodology. And we are not allowing any deviation from that methodology. We are not permitting any deviation from that methodology for the larger cause. So even if somebody is having the solution, we are refusing to accept that solution. That solution has to undergo our process. Okay, ji. And then the revised solution will be patented as a joint property of the CFP and that person who participated in the whole creating it. Very nice. So anybody who is already with a ready-made solution, we refuse to take any solution as it is. I see. तो मतलब ये है wonderful ideas. This is amazing. तो मुझे लगता है कि अपन लोगों ने काफी लंबी बात कर ली है. और now it is a time to conclude it because it is already 1.5 hours, and in future this meeting will be restricted to be within 1 hour only. Right? 2 घंटे हो गए. सही बात. If required, we can postpone it also, or whatever. I mean, you can decide and deliberate in your group. Sure. And the biggest thing should be that we are working on so many things. So we are working on 16 Bharat. So when you will receive that outline document, then you will get the idea, because it is creating job and services rich Bharat. It is creating green, herbal, medicine-free, healthy and wealthy Bharat. It is creating machinery and equipment-rich Bharat. So we intend to create our own implements. We want to create our own tools. When the Israel can think, why we cannot think in a whole spectrum? हम बड़ी चीजें भी बनाएं और बहुत छोटी चीजें बनाएं, जिससे कि जो हमारा हम किसी भी आदमी को अनड्यू टॉर्चर वाला काम करने ही नहीं दें. बिल्कुल सही बात. हमारा आदमी यहाँ पे ना तो काम करने आया, ना यहाँ नोट कमाने आया. हर आदमी यहाँ पे कोई लार्जर जो है ना स्पिरिचुअल पर्पज के लिए आया है, जिसको आप मोक्ष कहें या जिस भाषा में आपको करना है उस भाषा में करें. तो क्या हम आदमी को उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए क्या उसको कुछ हम स्पेस दे सकते हैं, जिससे कि वो उस जिस काम के लिए इस दुनिया में आया है उसको अभी थोड़ा बहुत कुछ आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट कर पाए. कैन बी रियली मेक हिज लाइफ इजियर, सो दैट उसकी पूरी जो जिंदगी है वो लाइवलीहुड या जो थोपी गई चीजें हैं कि उन्होंने कहा कि आपको तो फैमिली को दिखाना है, बच्चों को दिखाना है, इसको दिखाना है, उसको दिखाना है. अरे भाई, बच्चे ना आपके साथ आए ना आपके साथ जाने वाले, बीवी भी ना आपके साथ आई ना आपके साथ जाने वाली. इसका मतलब है आपकी आत्मा ही अकेली जाने वाली है. यू हैव नॉट डेवलप्ड एनी टेक्नोलॉजी टू टेक एनीथिंग विथ यू. आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है और आपके जो राइट्स हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं. आपकी कमाई हुई शर्ट आप पहने हुए हैं, लेकिन वो शर्ट भी फाड़ दी जाती है जस्ट टू नोशनली कन्वे दैट भाई साहब आप जिस शेप में आए थे आप उसी शेप में वापस जा रहे हैं. यू कैन नॉट इवन टेक ए थ्रेड. सही बात है, सही बात है. अब ये मैसेज उस मुर्दे को तो देना नहीं था, ये मैसेज तो जो वहां पे लोग थे उनके लिए था. सही बात. और वो लोग जो है वहां पे क्रिमेशन ग्राउंड में भी अपने बिजनेस की बातें कर रहे हैं, अपने उसकी बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नेतागिरी की बातें कर रहे हैं. आजकल चाहे आपका शादी की जगह हो या जो है क्रिमेशन ग्राउंड हो, आदमी 10 मिनट खड़े होने के बाद वहां पे भी उन जगहों को भी जो है ना जो है शुद्ध उस काम के लिए नहीं करता है जिस काम के लिए वो वहां पहुंचा हुआ है. ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है.
हाँ, वहाँ बैठ के तो विचार करना होता है, चिंतन मंथन है, और श्रवण मनन निधिध्यासन वाला जो रूल है, तो वो सब करना होता है। यू आर वेरी राइट। कल किसी तो मीटिंग। मेरे ख्याल से जब हम थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे, सब लोगों को हेल्दी वेल्दी बना देंगे, तो क्राइम फ्री भारत का कहीं ना कहीं सोच ये भी है कि आपकी लाइफ को इतना आसान और सुगम बना दिया जाए कि आपका एग्जिस्टेंस आपके लिए जो है ना कष्टदायी ना हो। आनंद आए, इसके लिए मजा आए, हमने काम करने में आनंद आए आदमी को। मैं आप मैं आपको कह रहा हूं कि आई एम हैविंग ए अल्टरनेट मॉडल ऑफ करेंसी एंड इट इज ए हैप्पीनेस करेंसी मॉडल। पहले अपन क्राइम फ्री भारत कर लेते हैं, 16 भारत पैदा कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर द हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुलनेस। एंड मित्रों, ये संभव है। मेरे ख्याल से इसी बात के साथ वी कैन रियली कंप्लीट इट। और फास्ट हम जो है ना ये कोशिश करें कि मित्रों को जोड़ें, इनको जोड़ें, उनको जोड़ें, और फिर उनके सब ग्रुप बनाएं हर टेक्नोलॉजी के अलग अलग, सो दैट दे कैन स्टार्ट वर्किंग कॉन्क्रीट। यदि डिसजॉइंटेड पीपल एक ग्रुप में रहेंगे विद डिसजॉइंटेड इंटरेस्ट, देन जो है ना दे विल बी क्रिएटिंग एनार्की ओवर देयर। कंसिस्टेंसी ऑफ विजन नहीं रहेगी। हम लोग अपने ज्ञान को और अपने आइडियाज को ही कहते रहेंगे, and we will be blocked and we are not ready to listen ideas of others। तो इससे जो है ना कोई डायलॉग भी नहीं होगा, कोई फायदा भी नहीं होगा। तो चूंकि हमें नॉलेज बांटनी नहीं है, तो नॉलेज पे चर्चा क्यों करना? सही बात। हमें उस नॉलेज को वैदिक नॉलेज से, अपने बाकी नॉलेज से इंटीग्रेट करना है, और उस नॉलेज को भी नहीं बांटना है, उस नॉलेज को सर्विसेज एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, एंड दैट विल बी अवेलेबल टू द एट द डोर स्टेप, and it will be providing the cyclic service। तो जो स्टार्टअप क्राइम फ्री भारत के तहत पैदा होंगे, उनको जो है ना अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद नहीं बनाना पड़ेगी, उनको अपने फाइनेंसेस खुद नहीं खोजना पड़ेगा, उनको अपना रॉ मटेरियल जो भी चाहिए उनको वो खुद नहीं करना पड़ेगा, कोई दूसरा उनके डोर स्टेप पे पहुंचाएगा। और जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे उसे बेचने की जिम्मेवारी उनकी नहीं होगी, कोई दूसरा जो है ना उसको ले जाके जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा, और किसी को भी अनड्यू डिस्टॉर्टेड प्रॉफिट लेने की छूट नहीं होगी। और चूंकि हम हर किसी को हेल्दी और वेल्दी बनाना चाहते हैं, तो उसको बहुत ही रीजनेबल प्रॉफिट लेने का जो है ना वो होगा, जिससे वो वेल्दी हो। हम जो है ना सब्सिडीज देंगे, ना हम फ्रीबीज देंगे, हम उसको परचेजिंग पावर देंगे। अभी लोगों ने मिलजुल के जो है हमारी सोच को, हमारी क्षमता को खंडित कर दिया है। लोगों ने चाल चल के हमारे जो है युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया है। इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इन फुहड़ लोगों ने कि आपका फोटो जो है ना फेविकॉल से चिपका दें, इसको क्रिएटिविटी बना दिया। सही बात, वेरी नाइस। आई थिंक हम अपने जो है ना पैंट को फाड़ रहे हैं, फाड़ने को क्रिएटिविटी बना दिया। सो वन थिंग इज दिस, sir, ki our origin is very common. I think if we go back to, as I said, to our Vedic practices, including yoga and Ayurveda, we have already wonderful setup software. जैसे एक मस्ती की बात कर लेते हैं आपसे, आपने बोला डोर स्टेप पे पहुंचाना है, तो पहले गुरुजी एक बात बताओ कि पहले अपनी माता बहनें सब्जी खरीदने जाती थी तो 1 किलोमीटर जाती थी, 1 किलोमीटर आती थी, फिर थोड़ा फिटनेस हो जाती थी। अब आप सब्जियां डोर स्टेप पहुंचा देंगे तो और ज्यादा मोटे हो जाएंगे लोग, फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ी वो जो है नहीं, वो अपने आनंद के लिए ऐसे जाएंगे घूमने के लिए जहां वो काम का बोझ का तनाव दिमाग में नहीं होगा। They can really use it for themselves. That will be a very constructive, enjoyment where they will be doing that physical activity. They will be doing in a aerobic forming. They will be doing in a meditative form. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैं जो है मेडिटेटिव योगा करता हूँ, एंड वो मुझे दो घंटे कब निकल जाते हैं मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। सही बात। सो यदि मैं किसी आसन पर बैठा हूँ, वो मैं आसन नहीं करता, मैं उस आसन को मेडिटेशन में कन्वर्ट करता हूँ। वेरी नाइस। आई थिंक और जो 21 का जो नंबर है वो हर जगह उसमें इंटीग्रेट किया गया है, बिकॉज देयर इज सम रैशनल बिहाइंड 21। ओके। तो आई एम इन योगा बेसिकली, आई एम इन एवरीथिंग बेसिकली। So
आई थिंक जो हम लोग की सोच है, हम नॉलेज ना बांटे, काम करें। हम जो है ना उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में बनाए। जैसे कि अभी आपका जो है ना मोबाइल से अपन बात कर रहे हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं, मैं यहाँ भारत में बैठा हुआ हूँ, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप सही बात। दूसरे शहर में बैठे हैं। हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं और हमें एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की जो है ना फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सही बात। यदि आप इंडिया में आएंगे और मेरे साथ बैठे होंगे, तो जो आपका फिजिकल प्रेजेंस का जो आनंद है वो जरूर होगा, सही बात है। लेकिन प्रॉब्ली अनडिवाइडेड अटेंशन उस समय शायद आपको नहीं मिल पाए। नहीं मिल पाए। अभी जो डिजिटल में हम सामने बैठे हुए हैं, जैसे आपकी पत्नी का फोन आया तो आपने कहा नहीं, यू आर इन ए कॉन्फ्रेंस। अब यदि एज्यूम करिए घर पे बैठे होते और पत्नी जी आपको जो है ना आई एम कॉन्फ्रेंस थोड़ी कहने देती। सही बात है। 2-2 घंटे हो गए, 2-2 घंटे हो गए, खाना नहीं खाया अभी तक। अभी यहाँ के 11 बजे हैं, 10 मिनट, कल एकादशी है, तो भोजन अब करना बाकी है अभी तक। चलिए तो लेट्स क्लोज दिस मीटिंग, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर लक्ष्मण जी फॉर ज्वाइनिंग आवर मिशन। यू आर सच ए लर्नेड पर्सन, आपने इतनी सारी डिग्री की है, इतना सारा काम किया है। हम हर व्यक्ति जिसने काम किया है, कई लोगों ने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है, वी डू नॉट रियली वांट टू डू दैट वर्क, वी वांट टू ब्रिंग देम, एंड उसके नॉलेज को यूज करके हम उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्रिएट करें और उसको डोर स्टेप पे भेजें। और जो आपने कहा कि लोग मोटे हो जाएंगे, वो कॉन्सेंट्रेटेड प्लेजर के लिए जो उन्हें करना चाहिए वो करने का उनको मौका दिया जाएगा। जय हो। और वो उस एनवायरनमेंट में करेंगे। वो सब्जी के बाजार में घूमने का काम क्यों करें? वो अच्छे से सुंदर पार्क में जिसमें खुशबू आ रही है उसमें घूमने का काम ये क्यों? बात सही है, ये बात सही है, बिल्कुल सही बात। हम वहां पर जो है मेडिटेशन और आध्यात्म की चर्चा क्यों ना करें, जिससे आनंद आए। गीता जी के श्लोक याद कराएंगे हम। सही बात। करेक्ट। तो आई थिंक आपका जो है एकादशी का व्रत आप तोड़िए, और इस मीटिंग को हम आज इसी नहीं, कल है हर एकादशी को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तो अपन पूर्णावधि के साथ पूरा स्वस्ति मंत्र के साथ पूरा कर देते हैं। चलिए तो आप मंत्र का वाचन करिए, और आप चाहें तो एक आध भजन भी सुना सकते हैं। ओके। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। सो हर एकादशी को हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, उसमें 15-20 लोग आ जाते हैं, और हर संडे को 2 घंटे। तो आपकी जो हॉबीज हैं उनके सेशन करिए और उसको रिकॉर्ड करिए, हम उसको क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करेंगे, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल आल्सो, और हमारी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिरिचुअलिज्म और माइथोलॉजी है। इसमें हम लॉ भी डालेंगे, टेक्नोलॉजी डालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, हर किसी को उसका लाभ बांटेंगे, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी विल बिकम द कैरियर ऑफ वैदिक नॉलेज। अमेरिका में हमने 2 चीजों का कम यूज किया है। हम एक तो अपने हिंदुस्तान की जो कथाएं हैं उनको माइथोलॉजी नहीं बोलते, इतिहास बोलते हैं, और हम अंग्रेजों को बोलते हैं कि वी लर्न द वर्ड इतिहास, है ना। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन हो रहा था शिव जी का, तो शिव जी डिस्ट्रॉयर में और संहारक में फर्क होता है। डिजोल्यूशन, जो डिजोल्व करते हैं ना, वो डिजोल्व करते हैं सृष्टि को, फिर वो रिक्रिएट करते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब जला दिया, खत्म, ऐसे नहीं होता। डिजोल्यूशन मतलब कन्वर्टिंग इन द प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ द मैटर देन ब्रिंगिंग इट बैक। तो आपको अब से बात होगी, होती रहेगी अब तो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। प्रणाम आपको, और जय हिंद, जय भारत। जय भारत। मैं आपको फिर प्रणाम करता हूँ कि आप मॉडर्न ऋषियों में से एक हो, हमको ऐसा मौका मिला है। अनिल जी आपके बिल्कुल हनुमान जी बने हुए, आपको बहुत धन्यवाद। आपको और भगवान है आपको बहुत बिल्कुल स्वस्थ रखिए, एकदम स्वस्थ रखिए, है ना। ओके जी, राम राम। ठीक है मनीष जी। ओके, ठीक है मनीष जी, चलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।